بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا وہ آپ کو اپنے دماغ میں آنے دیتا ہے؟ اپنے موڈ اور مرضی کے مطابق کبھی آنے دیتا ہے، ورنہ سانس روک لیا کرتا ہے۔ تم نے پریزلر اور اس کی ٹیم کے خلاف اس کی مدد کی تھی، کیا اب بھی اس کی ناراضگی دور نہیں ہوئی؟ اب سے 5 دن پہلے اس نے کہا تھا وہ ناراض نہیں ہے، لیکن کشمیر اور سیاچن کے علاقوں میں جب تک رہے گا مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس کا خیال ہے کہ میں پھر بھارتی فوجیوں کو اس کے پیچھے لگا سکتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے سانس روک لی تھی۔ ان 5 دنوں میں میں نے کئی بار رابطہ کرنا چاہا، لیکن وہ بڑا ضدی اور ہرجائی ہے۔ وہ ہرجائی صحیح، مگر تم تو اسے دل و جان سے چاہتی ہو۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ تم اس کی مدد کیسے کرو گی؟ پہلے تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن آج کل پاشا میرا تابعدار بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی سماعت سے کبھی کبھی اس کی آواز سن کر بتا دیتا ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ ہرارے نے انجان بن کر پوچھا، یہ غیر معمولی سماعت سے کیا مراد ہے اور یہ پاشا کون ہے؟ وہ پاشا کے متعلق مختصر طور پر بتانے لگی۔ ہرارے نے کہا، تم نے اتنے زبردست آدمی کو اپنا تابعدار بنا کر رکھا ہے، تعجب ہے کہ پھر بھی پارس تک نہیں پہنچ پاتی ہو۔ شاید میں جلدی اس کے قریب پہنچ جاؤں۔ کل اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ چند دشمنوں سے لڑ رہا تھا اور پاشا کو ہیلی کاپٹر کے پرواز کرنے اور کسی کے گڑگڑانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، پارس مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، مجھے ہیلی کاپٹر میں رہنے دو۔ لیکن اس کے بعد ہی اس بولنے والے کی چیخیں سنائی دیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ آخری دشمن کو بھی نیچے گرا کر ہیلی کاپٹر کہیں لے گیا ہے۔ تمہارے پاس ایک غیر معمولی سماعت رکھنے والا شخص ہے، اگر وہ اپنی توجہ پارس پر مرکوز رکھے تو پھر اس کی آوازیں سن سکے گا۔ کل رات سے اب تک 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، پاشا نے اب تک اس کی آواز نہیں سنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاشا 24 گھنٹے ایک ہی آواز پر اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا، کیونکہ 6 سے 8 گھنٹے تک وہ سوتا ہے۔ کھانے پینے، نہانے دھونے اور کہیں آنے جانے کے دوران پارس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اور اب تو یہاں رات کے 3 بجنے والے ہیں۔ صرف پاشا ہی نہیں، پارس بھی کہیں سو رہا ہوگا۔ میں بھی اپنی نیند پوری کرنے کے بعد صبح سے پارس کی طرف توجہ دینے کو کہوں گی۔ بہتر ہے تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ یہ بتاؤ پھر کب فون کرو گی یا اپنا کوئی موبائل نمبر دو گی؟ میں کل دن کے 8 بجے رابطہ کروں گی۔ اچھا، شبھ راتری یعنی گڈ نائٹ۔ مائک ہرارے نے فون آف کر کے سپر ماسٹر سے کہا، آپ نے مجھے پاشا کے متعلق بتایا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ شیتارا نے اسے اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل تک پاشا کے ذریعے پارس کا سراغ مل جائے۔ اب ڈی کروسو کو اپنی ٹیم اور عکس منتقل کرنے والے آلات کے ساتھ روانہ ہو جانا چاہیے۔ ایک افسر نے کہا، ایک اہم بات یہ معلوم ہو گئی کہ شیتارا دہلی میں ہے۔ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہو کہ صبح دہلی سے کہیں دوسرے شہر چلی جائے گی۔ ڈی کروسو نے کہا، وہاں پاشا بھی ہوگا۔ اگر میں یہاں سے دہلی جاتا تو پاشا جیسے کام کے آدمی کو شیتارا سے چھین کر اپنا تابعدار بنا لیتا، لیکن بھارتی حکومت ہم غیر ملکیوں کو دہلی سے کشمیر نہیں جانے دیتی۔ وہاں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دنیا والوں سے چھپاتی ہے۔ ایک افسر نے کہا، ہم پاشا کو کسی اور وقت ٹریپ کریں گے۔ مسٹر ہرارے نے شیتارا کو شیشے میں اتار لیا ہے، اس کے ذریعے پہلے پارس تک پہنچا جائے۔ ڈی کروسو، تم یہاں سے اسلام آباد جاؤ، تمہارے وہاں پہنچنے تک شاید پارس کا سراغ مل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ ڈی کروسو اپنی ایک ٹیم ترتیب دے چکا تھا۔ امریکی ماہرین نے عکس منتقل کرنے والے مخصوص ویڈیو کیمراز اور اس سلسلے کے دوسرے تمام آلات تیار کر لیے تھے۔ سپر ماسٹر نے پاکستان اور بھارت کے فوجی افسران سے رابطہ کر کے انہیں اپنے ملک آنے کی دعوت دی تھی۔ یوں رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مائک ہرارے اور ڈی کروسو ان افسران کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں پہنچیں اور معلوم کریں کہ سیاچن کے محاذ پر جو فوجی افسران ہیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اہم معلومات حاصل کرنی تھی کہ ان بلند و بالا برفانی مقامات تک فوجی جوانوں کے لیے کھانے پینے اور دوسرے ضروریات کی چیزیں کب بھیجی جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں کون کون سے افسران یا فوجی جوان لے جایا کرتے ہیں۔ وہ رسد پہنچانے والے ایسے فوجیوں کے دماغوں میں جگہ بناتے جا رہے تھے۔ مائک ہرارے فوجی ہیڈ کوارٹر کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ اجلاس کے بعد وہ اپنے بنگلے میں آ کر سوچنے لگا کہ ایک شیتارا نے 2 مختلف آوازوں میں گفتگو کی تھی
और दो मुख्तलिफ आवाज़ों के फ़र्क को वही समझ पाया था। फिर उसने सोचा सितारा अपनी डमी से मिलने गई थी, उसे ज़रूर कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन नज़ले से भराई हुई आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि डमी कुछ बीमार है और असली सितारा उसकी इयादत के लिए गई होगी। उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा था कि बीमार सितारा हो या उसकी डमी, उनमें से किसी एक के अंदर पहुंचा जा सकता है। वो ये भी समझ रहा था कि दोनों इतनी नादान नहीं होंगी कि बीमारी में अपनी आवाज़ किसी और को सुनाएं। यकीनन बीमारी मामूली होगी और वो ऐसी हालत में भी पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती होगी। वो बड़ी देर तक हर पहलू पर गौर करता रहा। सितारा अपनी तमाम डमीज़ को अपनी मामूल और ताबेदार बनाकर रखती होगी और तमाम डमीज़ के दिमागों में यह नक्श किया होगा कि वो सिर्फ असली सितारा की सोच की लहरों को महसूस ना करें। हरारे ने सोचा, अगर मैं एक बीमार सितारा की भराई हुई आवाज़ को पेश नज़र रखूं और दूसरी सितारा की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी के लिए जाऊं तो उस बीमार के अंदर जगह ज़रूर मिलेगी। आखिर उसने यही कोशिश की। उसे मालूम नहीं था कि वो पूजा के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त रात गुजरने वाली थी, 4 बज गए थे, लेकिन पूजा गहरी नींद में थी। वो यकबारगी हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके दिमाग ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। हरारे अभी तक असल सितारा के लहजे को इख्तियार करके उसके अंदर था और वो अचानक बेदार होने के बाद भी सांस नहीं रोक रही थी। वो चंद लम्हों तक गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर बोली, ओ दीदी, तुमने पराई सोच की लहरों के जरिए आकर फिर चौंका दिया। तुम जाने से पहले इसी तरह दिमाग में आकर मेरी दिमागी तवानाई को आजमा चुकी हो। क्या आपको शुबा है कि मेरा नज़ला और खांसी बढ़ गई है, दिमागी तवानाई में कमी आ गई है और कोई दुश्मन मेरे अंदर आ सकता है? हरारे ने सितारा की आवाज़ और लहजे में कहा, मुझे हर पहलू से मोहतात रहना पड़ता है। बाय द वे, मैं मुतमईन हूँ, अब तो मैं नहीं आजमाऊंगी, आराम से सो जाओ। वो बिस्तर पर लेट गई। हरारे इतनी देर तक उसके अंदर रहकर उसके चोर ख्यालात से मालूम कर चुका था कि सितारा ने अपनी दाई माँ की आवाज़ और लहजे को इख्तियार करके पूजा पर तरमीमी अमल किया था और उसके दिमाग को लॉक किया था। ये एहतियात इसलिए की गई थी कि हरारे की तरह दूसरे दुश्मन भी सितारा की सोच की लहरों को अपना कर आएंगे और नाकाम होकर वापस जाएंगे। बहरहाल माइक हरारे ने एक राज मालूम कर लिया। उसने उस बूढ़ी आवाज़ और लहजे को याद किया जिसने पहली बार फ़ोन पर बात की थी। उस शातिर की यादाश्त काबिले रश्क थी। पूजा के चोर ख्यालात बता चुके थे कि वही बूढ़ी सितारा की दाई माँ है। इस बार वो दाई माँ की सोच की लहरों को इख्तियार करके पूजा के अंदर गया तो वो पुरसुकून रही। हरारे को अपने अंदर महसूस ना कर पाई। इसमें शुबा नहीं कि सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान को एक तवील मुद्दत के बाद माइक हरारे जैसा गज़ब का शातिर मिला था। आज तक कोई दुश्मन सितारा के करीब तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हरारे अब पूजा के जरिए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था और उसके तमाम राज मालूम कर रहा था। पूजा सो रही थी। उसका खाबीदा दिमाग बता रहा था कि सितारा एक तवील अरसे से सिर्फ एक दाई माँ के साथ रहती आई है। उसका भाई पेपे सरना पहले एक फौलादी जिस्म रखने वाला नाकाबिले शिकस्त इंसान था। बाद में फरहाद अली तैमूर ने उसे कैद करके दिन रात चर्स पिला पिला कर अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो नाकाबिले शिकस्त इंसान एक हकीर कीड़ा बनकर रह गया। सितारा को अंदेशा था कि भाई सरना के जरिए फरहाद उसे भी हकीर बना देगा, इसलिए उसने भाई को खुद से दूर हिमालय की तराई में भेज दिया था ताकि वहां रहकर भाई सरना अपनी खोई हुई कुव्वत बहाल कर सके। उस भाई के बाद सितारा अब पूजा पर भरोसा करती थी। उसे एक बड़ी बहन की भरपूर मोहब्बत देती थी। दुश्मनों से उसे बचाए रखने के लिए उसने दाई माँ की आवाज़ और लहजे में उस पर अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया था ताकि कोई दुश्मन उसके अंदर कभी ना पहुँच पाए। वाकई ये कोई नहीं सोच सकता था कि एक बूढ़ी औरत के लहजे में अमल करके पूजा की हिफाजत की जा रही होगी। बस ये माइक हरारे की जहानत थी और तकदीर भी उसका साथ दे रही थी, इसीलिए वो पूजा के अंदर पहुंच गया। पूजा के खाबीदा ख्यालात बता रहे थे कि सितारा उसे अपने करीब ही रखती है, जिस शहर में जाती है वहां उसे साथ लेकर जाती है, लेकिन एहतियातन उसे कुछ फासले पर दूसरी रिहाइश गाह में रखती है। इन दिनों वो दिल्ली में थीं। सितारा को इंतज़ार था कि कल तक पाशा गैर मामूली समात के जरिए पारस का सुराग लगाएगा और बताएगा कि वो फलां शहर या फलां इलाके में है, तो वो पूजा और दाई माँ को दिल्ली में छोड़कर पारस के पीछे चली जाएगी।
माइक हरारे दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर सोचने लगा। उसे दिल्ली में शितारा का पता ठिकाना मालूम हो गया था। वो उस शहर में अपने आलायकार पैदा करके या पूजा के जरिए शितारा को आसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना सकता था। लेकिन शतरंज की बिसात पर जल्दबाजी में चालें नहीं चली जाती। वो पूजा जैसे मोहरे को खूब सोच समझकर चलना चाहता था। उसे सब्र व तहम्मुल के साथ यकीन था कि वो जब भी पूजा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो शितारा बड़ी आसानी से उसके ज़ेरे असर आ जाएगी। फिलहाल उसने पूजा के खाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल किया। ऐसे वक्त दाई माँ की आवाज़ और लहजे को ही बरकरार रखा। उसके दिमाग से सिर्फ ये बात मिटा दी कि शितारा उससे रुखसत होने के बाद तकरीबन 4 बजे फिर अपनी ज़ाती सोच की लहरों से उसे आजमाने आई थी और उसकी दिमागी तवानाई से मुतमईन होकर वापस चली गई थी। दूसरी सुबह शितारा 7:30 बजे बेदार हुई। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद पूजा की खैरियत मालूम करने के लिए दाई माँ का लहजा अपनाकर उसके अंदर आई। वो गहरी नींद में थी। उसकी खाबीदा सोच कह रही थी कि तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो सुकून से सो रही है। फिर वो पाशा के अंदर आई। उसे नींद से जगाना चाहती थी। पता चला वो सुबह 5 बजे से जाग रहा है और वक्फे वक्फे से पारस की आवाज़ सुनता जा रहा है। शितारा ने पूछा, क्या ये पता चला कि वो अभी कहाँ है? वो नागवारी से बोला, क्या खाक पता चलेगा, वो किसी जवान औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है वो औरत? मैं क्या बता सकता हूँ। वो अजनबी जुबान में बोल रही थी और पारस कह रहा था, तुम हसीन हो, भरपूर जवान हो, मगर नेपाली जुबान बोलती हो। ना मैं तुम्हारी जुबान समझता हूँ ना तुम मेरी जुबान समझती हो। वैसे रात काली करने के लिए जुबान से कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी बोली बोलती रहो, अपनी मैं बोलता रहूँगा। पाशा ने इतना कहकर एक सर्द आह भरी, फिर कहा, आह, तब से मेरी नींद उड़ गई है। ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिन्हें सुनकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। शितारा ने आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के पीछे अपने बदमाश को देखने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी, उस आलमी चैंपियन ने वाकई मेरी भलाई के लिए मशवरा दिया है। अगर एक बार मैं पारस के दिमाग पर कब्जा जमा लूं तो फिर वो कभी किसी औरत से दोस्ती नहीं कर सकेगा। वो पाशा से बोली, तुमने सुबह 5 बजे उसकी आवाज़ें सुनी थीं, अब दिन के 8 बज चुके हैं। जाओ फिर आवाज़ें सुनो। वो आजिज़ी से बोला, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। वो आवाज़ें सुनता हूँ तो क्या बताऊँ कि मुझे क्या होता है। ना लेट सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। पूरे 3 घंटे से टहल रहा हूँ। आंखों से तो नींद ही उड़ गई है। ज़्यादा बातें ना करो, जो हुक्म दे रही हूँ उस पर अमल करो। पारस की बातें सुनते रहोगे तो ये ज़रूर मालूम होगा कि वो अभी कहाँ है। मैडम, उस नेपाली औरत की मौजूदगी बता रही है कि पारस नेपाल में है। नेपाल की औरतें हिंदुस्तान के कितने ही इलाकों में पाई जाती हैं। हिमालय, हिंदू कुश, कैलाश और कराक्रम की वादियों में जो बस्तियां हैं वहां भी ये औरतें मेहनत मजदूरी के लिए जाती हैं। कमॉन, जो कह रही हूं वो करो। पाशा उसका ताबेदार था, इसलिए पारस की आवाज़ पर तवज्जो देने लगा। अगर उस वक्त वो बोलता रहता तो ज़रूर उसकी आवाज़ें सुनाई देती। शितारा भी पाशा के अंदर रहकर समझ रही थी कि दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है। वो बोली, कोई बात नहीं, 10 या 15 मिनट के बाद फिर सुनने की कोशिश करो। मैडम, दोपहर से पहले उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोपहर से पहले नहीं बोलेगा? आप नादान नहीं हैं, समझ सकती हैं, वो दोनों थक कर सो रहे होंगे। वो झींप कर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे पारस पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो कब नींद से बेदार होने वाला था और कब उसका सुराग मिलने वाला था। उसने नाश्ते से फारिग होकर चाय पी, फिर फ़ोन के ज़रिए माइक हरारे को मुखातिब किया और कहा, अभी तक पारस का सुराग नहीं मिल रहा। पाशा के ज़रिए पता चला है कि वो पिछली रात जागता रहा था, अब सो रहा है। हरारे ने कहा, पिछली रात जागने का ये मतलब है कि वो अहम मामलात में मसरूफ़ रहा होगा। क्या मसरूफियात के दौरान पारस की बातों से मालूम ना हो सका कि वो कहाँ है और वो अहम मामलात क्या हैं? वो नागवारी से बोली, कोई अहम मामला नहीं था, वो पक्का बदमाश है, किसी नेपाली औरत के साथ था। अच्छा, समझ गया, तुम्हारे गुस्से को भी समझ रहा हूँ। ज़रा सब्र करो, तुम उस हरजाई पर बहुत जल्द काबू पा लोगी। फिर वो तुम्हारे हुक्म के बगैर तुम्हारी 4 दीवारी से बाहर कदम नहीं रख सकेगा। मिस्टर हरारे, मैं कल से तुम पर बहुत भरोसा करने लगी हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शातिराना चालों के ज़रिए मैं पारस को हमेशा के लिए अपना ताबेदार बना लूँगी।
बेशक उसे नींद पूरी कर लेने दो, फिर वो नेपाली औरत से या आसपास के लोगों से बातें करेगा तो उस जगह की निशानदही हो जाएगी। तुम मुझसे बराबर राबता रखो, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। फ़ोन का राबता ख़त्म हो गया। आइंदा उसे सितारा के फ़ोन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो पूजा के अंदर रहकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। वो पूजा के पास आया तो वो बेदार हो चुकी थी और सितारा दाई माँ के लहजे में उसके अंदर बोल रही थी, तुम अपने होने वाले जीजाजी बहनोई की बड़ी तारीफ़ें करती हो, पता है वो कैसा पक्का बदमाश है। वो पूजा को उसके मुतल्लिक बताने लगी। बताने के दौरान झुंझलाती भी जा रही थी। पूजा ने कहा, दीदी ये तुम्हारी बुरी आदत है कि गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती हो। ज़रा सब्र करो, वो आज रात तक ज़रूर काबू में आएगा। मैं उसकी तारीफ़ें इसलिए करती हूँ कि एक बुराई को छोड़कर उसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। जब वो आपके काबू में आएगा तो वो एक बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। पूजा, मैं बहुत तन्हाई और उलझन सी महसूस कर रही हूँ। अगर तबीयत ठीक हो तो किसी टैक्सी में बैठकर चली आओ, 1 से 2 भले होते हैं। मेरा दिल बहल जाएगा। हम दोपहर का खाना एक साथ खाएंगे। अच्छी बात है, मैं अभी गुस्ल वगैरह से फारिग होकर आती हूँ। पूजा बिस्तर से उठकर अलमारी के पास आई, उसे खोलकर एक लिबास निकाला, फिर गुस्ल खाने में चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर वहाँ से निकली। अपनी रिहाइश गाह के सामने ही एक टैक्सी मिल गई। वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठी तो ऐसे वक्त पूरी तरह अपने इख्तियार में नहीं थी। उसने ड्राइवर से उस इलाके में चलने को कहा जहाँ सितारा का क़याम था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर के सामने टैक्सी रुकवाई। फिर टैक्सी से उतरकर उसने स्टोर से आसाब को कमज़ोर करने वाली एक दवा ख़रीदी। ऐसी दवाएं मेडिकल स्टोर वाले खुफिया तौर पर ज़्यादा कीमत पर देते थे। अगर वो ना देता तो हरारे उसके दिमाग में घुसकर वो दवा पूजा के पास पहुंचा देता। वैसे बआसानी दवा मिल गई। वो फिर टैक्सी में आकर बैठ गई। माइक हरारे बहुत मोहतात रहकर पूजा से अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करा रहा था। दवा खरीद कर टैक्सी में वापस आकर बैठने तक उसे दिमागी तौर पर गायब रखे हुए था। वो ये जान ना सकी कि उसने दवा को अपने ब्लाउज़ के गिरेबान में छुपा लिया है। वो टैक्सी एक कोठी के अहाते के अंदर आकर रुक गई। सितारा ने बाहर आकर ड्राइवर को पैसे दिए, फिर पूजा के साथ कोठी के अंदर आते हुए बोली, मैं बोर हो रही थी, माँ जी बाजार गई हैं, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। वो दोनों एक ख्वाबगाह में आकर बैठ गईं। पूजा ने पूछा, पाशा कहाँ है? कोठी के पिछले हिस्से में जो कमरा है वहाँ सो रहा होगा। वो कम वक्त भी पक्का अय्याश है, हम दोनों को ललचाई हुई नज़रों से देखता है, मगर मेरा मामूल और ताबेदार है, इसलिए मेरे सामने चूहा बना रहता है। पूजा ने हरारे की मर्जी के मुताबिक कहा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, हालांकि 11 बजने वाले हैं। किचन और फ्रीज़र से कुछ खाने को ले आओ और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चाय पीने में तो साथ दोगी? अच्छी बात है, पी लूँगी। चलो मैं ही चाय बनाती हूँ, यहाँ अकेली बैठे बैठे पहले ही बोर हो रही हूँ। वो दोनों किचन में आईं। माइक हरारे ज़रा उलझ गया। उसकी मामूला पूजा अपनी दीदी की मौजूदगी में चाय के अंदर दवा नहीं मिला सकती थी। वो स्लाइस पर जेली लगाकर खाने लगी। सितारा चाय तैयार करने लगी। इधर हरारे तेजी से सोच रहा था। सितारा उसकी टेलीपैथी की मुट्ठी में आते आते फिसलने वाली थी। आखिरकार चाय तैयार हो गई। सितारा 2 प्यालियों में चीनी डालकर उसमें चाय उंडेलने लगी। ये चाय पूजा को पेश करनी थी, मगर उसका उलट हो रहा था। वैसे वो शातिराना चालें चलने वाला कुछ कम नहीं था, बाजी को उल्टी से सीधी करना जानता था। चाय पकने के दौरान हरारे ने पूजा के जरिए उस कोठी का फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था। उसने अपना मोबाइल उठाकर फ़ौरन ही वो नंबर डायल किया। राबता कायम होने में ज़रा देर हुई, मगर ज़्यादा देर नहीं हुई। जिस वक्त सितारा चाय से भरी हुई एक प्याली पूजा को पेश करने वाली थी, उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो प्याली रख कर बोली, मैं देखती हूँ, शायद माँ जी कहीं से फ़ोन कर रही हैं। वो तेज़ी से चलती हुई किचन से बाहर आ गई। उसके जाते ही पूजा ने अपने ब्लाउज़ के गिरेबान में हाथ डालकर दवा निकाली। थोड़ी सी एक प्याली में उंडेली, फिर शीशी बंद करके उसे गिरेबान के अंदर वापस रख लिया और प्याली के अंदर चाय को चम्मच से हिलाने लगी। सितारा जल्दी वापस आकर बोली, पता नहीं किसका फ़ोन था, रिसीवर उठाकर हेलो कहते ही बंद हो गया। पूजा ने उसकी तरफ वो प्याली बढ़ा दी। बाएं हाथ से अपने लिए दूसरी प्याली उठा ली। सितारा ने प्याली लेकर कहा, चलो बेडरूम में चलकर पिएंगे और बातें करेंगे। माइक हरारे बेचैन हो गया। वो चाय सितारा के हलक में उतरने वाली थी,
मगर खामखा देर हो रही थी। वो दोनों बेडरूम में आकर एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गईं। शितारा ने दरमियानी मेज पर प्याली रख दी। पूजा ने अपनी प्याली से एक चाय की चुस्की ली, फिर कहा, दीदी क्या सोच रही हो, चाय पियो। वो अपनी प्याली उठाकर बोली, मैं उसी हरजाई के मुतल्लिक सोच रही थी। 1000 बार फैसला करती हूँ कि उसे याद नहीं करूँगी, मगर जाने कैसे बेख्तियार वो याद आने लगता है। छोड़ो भी दीदी, चाय तो पियो। शितारा ने शामत लाने वाली प्याली को होंठों से लगाया, लेकिन एक चुस्की लेने से पहले जैसे जलजला सा आ गया। पाशा दूर से चीखता हुआ आ रहा था, मैडम मैडम तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं पारस की आवाज़ सुन रहा हूँ, तुम कहाँ हो मैडम। शितारा फौरन ही प्याली को मेज पर रखकर उठ गई, तेजी से चलती हुई बेडरूम से निकली। पाशा उसे आवाज़ें देता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंच गया था। पूजा भी अपनी दीदी के पीछे चली आ रही थी। शितारा ने पाशा से कहा, आराम से बैठो और उसकी आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। इधर माइक हरारे के अंदर खलबली मची हुई थी। शितारा मुट्ठी में आते आते रह जाती थी। वैसे हरारे को पारस का भी सुराग लगाना था। वो शितारा को थोड़ी देर बाद चाय पिला सकता था, इसलिए वो भी पाशा के दिमाग में आ गया। पाशा एक सोफे पर बैठा खला में तक रहा था और आवाज़ सुन रहा था। उसके जरिए शितारा और माइक हरारे भी आवाज़ सुन रहे थे। पारस किसी से कह रहा था, मुझे एक गधे की ज़रूरत है। दूसरे शख्स की आवाज़ आई, साहब इन पहाड़ी इलाकों में गधे नहीं खच्चर मिलते हैं, आप खच्चर पर भारी सामान लाद कर पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। पारस की आवाज़ आई, आह तुमने खच्चर का जिक्र करके मुझे मेरे खच्चर की याद दिला दी। मैं उसे श्रीनगर में छोड़ आया हूँ। तुम्हारे पास जो खच्चर है उसका तुमने कोई नाम रखा होगा। जी साहब जी, मैं इसे प्यार से खैरू कहकर बुलाता हूँ। मैं भी अपने खच्चर को बहुत चाहता हूँ और उसे प्यार से पाशा कहता हूँ। ये सुनते ही पाशा आपे से बाहर हो गया। गुस्से से धाड़ कर बोला, अबे खच्चर तू होगा, तेरा पूरा खानदान होगा। मैं आज ही एक खच्चर खरीद कर उसका नाम पारस रखूंगा। शितारा ने डांट कर कहा, यू शट अप, क्या पारस तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है? क्यों खामखा गरज रहे हो? चलो मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, उसकी बातों से मालूम करो कि वो किस पहाड़ी इलाके में है। इतना तो मालूम हो गया है कि वो काफ़ी सामान के साथ किसी पहाड़ी पर चढ़ने वाला है। पाशा फिर आवाज़ की तरफ तवज्जो देने लगा। पारस पूछ रहा था, तुम अपने खच्चर का किराया क्या लोगे, या ये बता दो कि इस पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचाने का मुआवजा क्या है। पूजा ने शितारा के बाजू को झकझोर कर कहा, दीदी आप पाशा के दिमाग के अंदर जाकर सुन रही हैं। इन आवाज़ों के लिए गैर मामूली समात की ज़रूरत ही नहीं। पाशा ने गुर्रा कर पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये आवाज़ें तुम मेरी सलाहियतों के बगैर सुन सकती हो? मैं सुन रही हूँ, ज़रा खामोश रहो और सुनो। पारस और उस खच्चर वाले की आवाज़ें हमारी कोठी के अंदर से आ रही हैं। कोठी के अंदर से? शितारा ने पूछा, फिर खामोश हो गई। अब उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही 2-4 लोगों के लड़ने और फिर चीखने की आवाज़ें यूं आ रही थीं जैसे वो मार खाकर हेलीकॉप्टर से बाहर नीचे गिर रहे हों। फिर किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पारस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे हेलीकॉप्टर में रहने दो। लेकिन इसके बाद ही उस बोलने वाले की चीखें सुनाई दीं। फिर खामोशी छा गई, सिर्फ हेलीकॉप्टर के परवाज़ करने की आवाज़ें आती रहीं। पाशा ने सोफे से उठकर कहा, मैडम ये वही आवाज़ें हैं जिन्हें मैं परसों सुन चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। ये पारस दूसरी बार हेलीकॉप्टर में दुश्मनों से लड़ रहा है। शितारा ने कहा, बकवास मत करो, ये आवाज़ें हमारी इसी कोठी से आ रही हैं। वो सब तेज़ी से चलते हुए ड्राइंग रूम से निकलकर आवाज़ की समत का तयन करते हुए एक कमरे में आए। फिर एक कैबिनेट की तरफ देखकर ठिठक गए। वहाँ एक बड़ा सा कैसेट रिकॉर्डर रखा हुआ था। उसके स्पीकर से एक औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। पाशा ने कहा, मैडम ये इसी नेपाली औरत की आवाज़ है जिसे मैंने सुबह 5 बजे सुना था। शितारा ने कहा, बकवास मत करो, ये नेपाली तो क्या कोई ढंग की ज़ुबान ही नहीं, पता नहीं ये क्या लम कलम बक रही है। उसी वक्त स्पीकर से पारस की आवाज़ आई। वो कह रहा था, तुम हसीन हो, भरपूर जवान हो, मगर नेपाली ज़ुबान बोलती हो। ना मैं तुम्हारी ज़ुबान समझता हूँ, ना तुम मेरी ज़ुबान समझती हो। वैसे रात काली करने के लिए ज़ुबान से कुछ बोलना ज़रूरी नहीं। तुम अपनी बोली बोलती रहो, मैं अपनी बोलता रहूँगा। शितारा ने पाशा को घूर कर देखा। वो मुट्ठियाँ भेंच कर बोला, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। वो इस कैसेट के ज़रिए मुझे उल्लू बना रहा है। वो क्या बनाएगा, तुम पहले ही बने बनाए हो। वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। उसने किसी फिल्मी कैसेट से हेलीकॉप्टर की आवाज़ें रिकॉर्ड की।
जिनमें कुछ लोगों की मारपीट की आवाज़ें भी शामिल हैं। फिर उसने दूसरी आवाज़ बनाकर वो मुकालमे रिकॉर्ड कराए कि पारस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर शितारा ने कहा, वो मुख्तलिफ आवाज़ों का एक माहिर नक्काल है। अब मेरी समझ में आया, वो किसी औरत की आवाज़ में बेतुकी ज़ुबान बोल रहा था और तुम्हें समझा रहा था कि वो नेपाली बोल रही है। पाशा झींप रहा था और अपना सर खुजा रहा था। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। शितारा ने ड्राइंग रूम में आकर रिसीवर उठाया, फिर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से दाई माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटी, मैं तुम्हारी दाई माँ बोल रही हूँ। अभी जो कुछ बोल रही हूँ उस पर हैरानी जाहिर ना करना। पूजा के अंदर कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन छुपा है। मैंने पूजा को एक मेडिकल स्टोर से आसाबी कमजोरी की दवा खरीदते देखा है। फिर मैं इस कोठी में छुप कर आई। जब तुम किसी का फ़ोन अटेंड करने गई तो पूजा ने वो दवा चाय की एक प्याली में मिला दी। बाकी दवा एक शीशी में उसके गिरेबान के अंदर छुपी हुई है। शितारा ने पूछा, माँ जी, अभी आप कहाँ हैं? मैं कोठी के करीब एक पीसीओ से बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारी प्याली की चाय तब्दील कर दी है। अब उसमें जो चाय है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसे पीते ही आसाबी कमजोरी का नाटक करना और दिमाग के दरवाजे खुले रखना। इस तरह दुश्मन अपनी कामयाबी समझकर तुम्हारे अंदर आएगा तो उसकी असलियत मालूम हो जाएगी। शितारा ये बातें सुनकर हैरान हो रही थी, लेकिन दाई माँ ने ताकीद की थी कि वो हैरानी जाहिर ना करे। उसकी वजह समझ में आ गई कि दुश्मन होशियार हो जाएगा। वो पूजा के जरिए उसे देख रहा होगा। वो बोली, माँ जी, आपको यहाँ आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आप उस बेचारी बीमार औरत को उसके घर पहुँचा कर आएं। शितारा ने रिसीवर रखकर पूजा को देखा, फिर कहा, माँ जी, छोटी सी बात को लंबी कर देती हैं। इधर हमारी चाय ठंडी हो रही है। पूजा ने हरारे की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं तुमसे अभी चाय के लिए ही कहने वाली थी। वो दोनों बेडरूम में आईं, फिर उसी तरह आमने सामने दो सोफों पर बैठ गईं। वहां दोनों की प्यालियां रखी हुई थीं। शितारा ने अपनी प्याली उठाकर एक चुस्की ली। पूजा ने पूछा, क्या फिर से गर्म करके लाऊं? नहीं, तुम तो जानती हो मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। वो पीने लगी। आधी प्याली पीकर फिर अपना सर पकड़कर बोली, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, सर भारी हो रहा है। चाय खत्म करो, सर हल्का हो जाएगा। शितारा ने एक एक घूंट पीकर प्याली खत्म कर दी। उसके बाद सोफे के हत्थे को थाम कर उठी, एक कदम आगे बढ़ी, फिर लुढ़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसी वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन सांस नहीं रोकी। बेपनाह कमजोरी का इजहार करती हुई कराहने लगी। फिर माइक हरारे की फातिहाना आवाज सुनाई दी, हेलो शितारा, मेरी शातराना चालें कभी नाकाम नहीं होती। तुम्हें फर्श पर गिरता देखकर कहना पड़ता है, आखिर गिरे जमीन पर ऊंची उड़ान वाले। वो तकलीफ से कराहते हुए बोली, तो तुम आलमी चैंपियन हरारे हो? हाँ, मेरी शातिराना जहानत पहले ही कम ना थी। सुपर मास्टर और फौजी जनरल ने मुझे ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का ये इल्म देकर शराब को दुआश्ता कर दिया। टेलीपैथी की दुनिया में कहा जाता है कि आज तक शितारा के दिमाग में कोई नहीं पहुंच पाया। देख लो कि मैं तुम्हारा आका बनकर पहुंच गया हूं। शितारा ने सर घुमाकर पूजा को देखा। वो सोफे पर बैठी एक तरफ सर ढिलकाए कमजोरी से कराह रही थी। शितारा ने कहा, आलमी चैंपियन जिसे तुम आला कार बनाकर यहाँ लाए हो, जरा उसकी खबर लो। ये कहकर उसने सांस रोक ली। हरारे की सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर शदीद हैरानी से सोचने लगा, ये क्या हो गया? मैंने चालें चलने में कोई भूल नहीं की, फिर नाकामी कैसे हुई? ओ गॉड, शितारा मेरे हाथ से कैसे निकल गई? फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। पूजा के अंदर आकर देखा, वो कमजोरी से निढाल हो रही थी। शितारा ने कहा, माइक हरारे, अगर तुम मौजूद हो तो सुन लो। पूजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, वरना मेरी जवाबी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी। वो पूजा की जुबान से बोला, मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ, मेरी हैरानी दूर कर दो। तुम्हें मेरी साजिश का इल्म कैसे हुआ? तुम्हारी खुशफहमी ने तुम्हें नाकाम बनाया। आलमी चैंपियन ये भूल गया कि पीते पीते कभी ये जाम बदल जाते हैं। वो मजबूर था। पूजा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसके ज़रिए शितारा को ज़ख्मी करके हारी हुई बाजी जीत नहीं सकता था। उसी वक्त दाई माँ बाजार से सब्जियां लेकर आई। फिर पूजा की तरफ देखकर पूछा, ये ऐसे क्यों बैठी है? क्यों इस तरह करा रही है? शितारा ने कहा, माँ जी, तुमने प्यालियां बदल कर तो कमाल ही कर दिया, वरना पूजा की जगह मैं करा रही होती और वो दुश्मन मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुका होता। दाई माँ ने कुछ ना समझते हुए मेज़ पर रखी हुई प्यालियों को देखा, फिर पूछा,
मैंने कब प्यालियां बदली हैं? मैं तो अभी बाजार से आ रही हूँ। क्या कह रही हो माँ जी? क्या तुम थोड़ी देर पहले छुपकर यहाँ मेरे बेडरूम में नहीं आई थी? नहीं बेटी, मैं तो अभी आ रही हूँ। क्या अभी तुमने फ़ोन पर मुझे ये नहीं बताया था कि कोई दुश्मन पूजा के अंदर छुपा हुआ है और वो मुझे उसके ज़रिए आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहता है? बेटी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि ये तुम क्या कह रही हो। मुझे भला कैसे मालूम होगा कि पूजा के अंदर कोई दुश्मन है? मैं बाजार गई, वहाँ ज़रा देर हो गई, फिर सीधी यहाँ आई। मैंने तो तुम्हें कोई फ़ोन नहीं किया था। सितारा माँ जी को ऐसे तकने लगी कि पलकें झपकना भूल गई हो। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। वो सोच रही थी कि किसने मुझे माई खरारे की मामूला और ताबेदार बनने से बचाया है। फ़ोन की घंटी ड्राइंग रूम में बज रही थी, मगर सितारा गुमसुम थी। दाई माँ उधर गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, हाय बेटी, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, मगर फ़ोन पर एक और दाई माँ बोल रही है। क्या? सितारा हैरत से उछलकर खड़ी हो गई। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।